Hi everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. Namaskar, Sasrikal, bonjour, adab. Let's get started. आज का topic है हमारा soil as a natural resource. As you know, we are doing the chapter of land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, which is divided in the same topics जैसे कि land as a natural resource, soil as a natural resource, water as a natural resource, and then finally natural vegetation and wildlife. तो आज का टॉपिक हमारा सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स है. The concepts that we'll be covering under this is going to be soil as a natural resource, soil profiling, factors that affects the soil formation, methods of soil conservation, mulching क्या होता है, contour barriers क्या होते हैं, rock dam क्या होता है, terrace farming क्या होती है, intercropping क्या होती है, what do you mean by contour plowing and shelter belts. So these are the concepts that we'll be doing today. Now before we move on, let me quickly introduce myself. हाय बच्चा पार्टी, मेरा नाम अंकना है. मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट Imbibe and I come with an experience of more than 9 years in the field of education, teaching both online and offline. And I've got the wonderful opportunity to teach and interact with the students of both CBSE and ICSE. And I have done my studies in the field of humanities and hence I specialize in English and social science. Now that we're done with that, I think I have something really important that I want you guys to, explore and know is about Imbibe lens. So we'll just have a quick lens moment of the day. So बच्चे Imbibe lens जो है वो एक बहुत ही अच्छा टूल है जब भी आप पढ़ रहे हो कुछ और आप उनमें से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो या बेटर समझना चाहते हो. नॉर्मली वी एंड अप गोइंग ऑन गूगल, यूट्यूब, पुटिंग इन अ लॉट ऑफ टाइम, पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, and we will find results. I'm not saying we don't find results. It's just that it's a very time taking long process, and sometimes we have the time, sometimes we don't. And then what's the whole point? अगर मैं 15-20 मिनट ढूंढ रही हूँ, उसमें मैंने पढ़ लिया किसी चीज के बारे में, उतने देर में पढ़ के खत्म भी कर दिया, तो बेटर क्या है ना. और वो भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा. तो आपने कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. आई हैव डाउनलोडेड इट ऑन माय फोन. I'll show you how the magic works. So just simply open this application. It will require the access to your camera. Give the access to your camera. जस्ट स्कैन वॉट यूर रीडिंग. किताब पढ़ रहे हो, अगर फोन में ही पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके यू कैन अपलोड इट फ्रॉम योर गैलरी. जैसे मैं यहाँ स्क्रीन पे है तो मैं स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ. आप कैसे भी कर सकते हो, कहीं से भी. यू कैन स्कैन एनीथिंग. चिप्स के पीछे क्या लिखा है, किसी बॉटल पे क्या लिखा है, कहीं होर्डिंग पे कुछ लिखा है, यू टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट स्कैन दैट पर्टिकुलर पिक्चर एंड विल पॉप अप ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स लाइक दिस एंड स्टार्ट appearing over here. जिस भी चीज के बारे में आपको पढ़ना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे. सो आई एम गेटिंग सॉइल, मल्चिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो मैंने मल्चिंग मान लो सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन चीजों का 3D मॉडल पॉसिबली बन सकता है उनके ऐसे 3D मॉडल्स आपको दिख जाएंगे. ये देखो यहाँ पे हमें मल्चिंग दिख रहा है. आई कैन सी इट हैपनिंग. सो आई मीन, can you see how cool this is? Like I get to play with it and this is gonna make my whole process of learning like so fun. And मुझे इससे नहीं समझ आया मल्चिंग. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे ऊपर ड्रैग करूँगी and I am also finding these videos so I can watch these videos to learn further ahead what mulching is and what it exactly means. And in no time I was able to pull out those videos. So how much time did I save? Like a lot. And I didn't have to break my head and blow my brains out to just figure out what video I want to do and what video I want to learn. It's just done, right? So that's how cool this application is and that's how useful it can be for you. So with that, we'll move on and get started. So we have already done land as a resource. So we'll quickly do a recap of what we have done in the previous session. तो previous session में हमने समझा कि land एक vital natural resource है. It faces uneven distribution because of the varied characteristics across the globe. It's used for agriculture. And basically हर एक चीज जो है वो land पे based है, land पे बनी हुई है, right? Forestry, industry, agriculture, everything is determined by physical and human factors. So लैंड मतलब हर एक चीज लैंड पे बेस्ड है. लैंड की यूजेस जो है कि हम एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, कि जंगल के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्री बनाने के लिए कर रहे हैं, रोड्स बनाने के लिए कर रहे हैं,
ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे कि फिजिकल फैक्टर क्या है, कि लैंड कैसा है, पहाड़ है, डेजर्ट है, सॉइल का टाइप क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट क्या है, ये फिजिकल फैक्टर्स है। और ह्यूमन फैक्टर्स पे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है और उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है। पहले जैसे पहाड़ों पे लोग ज़्यादा नहीं रह पाते थे, टेक्नोलॉजी कम थी, एक्सेसिबिलिटी कम थी। जैसे जैसे बढ़ती गई हम उन जगहों पे भी रहने लग गए, हमारी एडवांसमेंट उस तरफ भी ज़्यादा हो गई। So that's how it varies, that how are you utilizing the land exactly. Ownership categorizes land. तो ownership क्या है कि ज़मीन पे किसका हक है। ownership के basis पे land को हम दो हिस्सों में categorize करते हैं, owners, private and community owned. Private is when an individual or a group of individual own a land. Community is more for shared purposes like parks and all. Then we understood that there are land pattern, uses pattern का मतलब क्या है कि किस चीज़ के लिए ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है। एज इन क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, क्या वहाँ पे जंगल है, क्या वहाँ पे घर बनाए गए हैं, रोड्स बनाए गए हैं, फॉर व्हाट पर्पस इज द लैंड बीइंग यूटिलाइज्ड। और ये वेरी करते रहता है टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, शिफ्ट्स दैट हैपेंस इन द सोसाइटी एंड इट अफेक्ट्स इन जनरल एवरीथिंग। But over exploitation threatens these resources in general, and we are over exploiting as the population is increasing. We are definitely over exploiting our land, and it needs to be conserved. Now, changes in land use pattern reflects the social shifts, but overexploitation threatens the resources. लैंडस्लाइड्स के बारे में भी हमने पढ़ा, हमने देखा कि लैंड के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड, जैसे कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड डिसर्टिफिकेशन ऑफ लैंड. सो लैंडस्लाइड इज ट्रिगर्ड बाय सर्टेन नेचुरल फेनोमेनन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज causes significant damage. A notable case, Kinnaur, we saw of the landslide which damaged the infrastructure completely, and the village where it happened had to be completely vacated for the precautionary purposes. And then mitigation हमने पढ़ा. Mitigation मतलब how can we avoid and try to ditch landslides from happening. and उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर आप मैप कर लो प्रोन एरियाज को, बहुत सारा एफॉरेस्टेशन कर दो, बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर दो, बाउंड्रीज बना दो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्लोप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल रिड्यूस द इफेक्ट एंड ऑफ कोर्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लैंडस्लाइड दैट हैपेंस अदरवाइज. So this is all that we have done of this chapter before and under land as a resource in the previous session. If you have not watched that session, do watch it. इस वाले टॉपिक से डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं बनेगा, हालांकि लैंड और सॉइल हैंड इन हैंड ही जाते हैं, थोड़े कनेक्टेड हैं, बट यार डायरेक्ट कनेक्शन शायद नहीं बने, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस. सो डू मेक श्योर दैट इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो, एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे भी है, यूट्यूब पे भी है, वेर एवर यू वांट यू कैन गो एंड वॉच. एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे देखने से यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्विजेस, सो दैट्स एन एडवांटेज. Now we'll start with 3 questions, as you know the drill. 3 questions सॉइल से ही मैं आपको पूछूंगी. आप अगर आंसर नहीं कर पाओ तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्ट्रेस नहीं लेना है. द आइडिया इज वेरी सिंपल, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मच वी ऑलरेडी नो. इफ वी डोंट, की फर्क पैंदा है, हम अभी पढ़ेंगे एंड देन विल कम बैक एंड देन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस अगेन. सो यू लुक एट दीज क्वेश्चंस and you'll try attempting them once we have finished the session. It will take hardly 2 minutes, and then I'm 100% sure you'll be able to answer these. So you don't have to worry if you're not able to now. Okay, so this is your first question. ये हमारा पहला सवाल है. The importance of soil lies in its dash. Importance of soil किस चीज में लाई करती है? In its fertility, color और texture. इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पूछा जा रहा है बच्चे. इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल किस चीज में लाई करती है? इन इट्स फर्टिलिटी, कलर और टेक्सचर. I'll show you the hint also. ओके बच्चे, सॉइल तभी तक इंपॉर्टेंट, कलर जो भी हो, टेक्सचर जो भी हो, लेकिन फर्टिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करेगी. अगर फर्टाइल है तो बढ़िया है, काम की है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, है ना. तो सोल्यूशन में मैं अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम इन चीजों को वैसे भी डिटेल में और आगे डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ बोथ inorganic and organic substances. Is this statement true or is this statement false?
Here's the hint for you. बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही सब्सटेंसेस होते हैं सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स इन सॉइल फॉर्मेशन? पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट और वेजिटेशन? Here goes the hint. Use it if you find it helpful. Okay, so which of the following influences the weathering and erosion of rocks in soil formation? It would be the climate. Climate जैसे temperature क्या है, बारिश हो रही है, wind है, all of these things will affect the weathering and erosion of soil in the formation of the soil. Now with that, let's get started. Now we'll talk about, look at this eye-catching image of nature. As you can see, it's beautiful, isn't it? अगर मैं आपको ये बताऊं कि धरती हमेशा से ऐसे नहीं दिखती थी तो थोड़ी एस्टॉनिशिंग नहीं लगेगी? हमेशा ऐसा ही देखा है, ऐसा ही जाना है, ऐसा ही समझा है. But there was a point when none of this existed. No plants, animals, soil, humans, nothing. So the formation of soil is actually a very slow process, but a consistent and a constant process that keeps on happening. Like in this very moment also soil is being formed somewhere. एक पतली सी लेयर भी सॉइल की बनने के लिए like 1 mm takes hundreds of years, right? So let's take this journey and understand कैसे soil बनता है, क्या layers of soil बनते हैं and the factors which affect the formation of the soil. Okay, सबसे पहले soil बच्चे एक बहुत ही crucial natural resource है. Land के साथ साथ soil भी add on हो जाता है. हर एक चीज, especially plants which is the very base of life support, वो soil पे grow करती है. हमारा खाना, जानवरों का खाना, सब कुछ soil की मदद से ही आ पाता है and it is that layer which covers the earth's crust. अब ये दोनों चीजें कंबाइंड यहाँ पे आपको मिलेंगी, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक क्या हो गया? ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन होती है, लिविंग थिंग्स, कार्बन कंटेनिंग थिंग्स. एंड इनऑर्गेनिक बाकी केमिकल्स वगैरह भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं. और वेदर्ड रॉक्स, वेदर्ड रॉक्स मतलब वेदर ऑफ हो चुके, टूटे फूटे, टूट चुके, मिट्टी में बदल चुके रॉक्स भी हमें यहाँ मिलते हैं. थोड़े थोड़े पत्थर भी मिलते हैं हमें. Soil formation occurs through the process of weathering, where rocks break down into smaller particles. तो अगर आपने कभी सोचा है कि आखिर सॉइल बन कैसे रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस शुरू कैसे हो रहा है, हाउ इज दिस हैपनिंग? इट्स वेरी सिंपल. द आइडिया इज दैट एक बड़ा पत्थर होता है, वक्त के साथ साथ क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है. वेदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग डाउन. So it will break down and it will keep breaking down into further smaller pieces. पहले एक बड़ा पहाड़ रहा होगा, वो टूटकर छोटे टुकड़ों में टूटता है. पहले थोड़े छोटे पहाड़ों में टूटता है, फिर और छोटे ऐसे से करके इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हो जाते हैं जो आपस में रब होते हैं और डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसे हम कहते हैं वेदरिंग. ठीक है, वेदर ऑफ होना, रगड़ रगड़ करके टूटते जाना, ब्रेक डाउन होते जाना. तो बड़ा पत्थर जो है, बहुत समय से उस पर बारिश हो रही थी, कभी बहुत धूप, कभी ठंडी, करते करते वो टूट जाती है. एक चेयर को आप बाहर रख दो, धूप भी पड़ेगा, बारिश भी होगी, तो अपने आप उसको 2-4 महीने बाद हिलाने जाओगे, उसको यूज करने जाओगे, यूज करने लायक नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा. तो वैसे ही पत्थर भी एक्सपोज हो करके वेदर से टूट जाते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच कीप्स ऑन रबिंग अमंगस्ट इटसेल्फ एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दिस पाउडरी सब्सटेंस व्हिच फॉर्म्स द सॉइल.
नाउ सॉइल की फर्टिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी? द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिपेंड ऑन द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो बच्चे, हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि पत्थर कैसे बनते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, बेसिकली लावा, अलग अलग फैक्टर्स, लेयरिंग। अब इस लेयरिंग में या लावा से जो भी निकल के आया उसके साथ अलग अलग मिनरल्स आए उन रॉक्स में प्रेजेंट। उन रॉक्स को जब आपने वेदर ऑफ किया, आपने नहीं किया, नेचर नहीं किया, बट वो रॉक्स जब वेदर ऑफ होते हैं, सॉइल फॉर्म होता है, तो वो मिनरल्स उन सॉइल्स में भी जुड़ जाते हैं। अब जितनी अच्छे तरीके का कॉम्बिनेशन के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मौजूद होंगे, उतनी अच्छी सॉइल की क्वालिटी होगी, उतना ही ज्यादा वो फर्टाइल होगा। सिंपली द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। सॉइल एक मीडियम की तरह एक्ट करता है जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि रूट्स उसी में जाते हैं और रूट्स जो है प्लांट्स के, वो सॉइल से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसलिए सॉइल जितना फर्टाइल है, यानी कि जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उसके पास, वो उतने ज्यादा अच्छे न्यूट्रिशंस जो है उन प्लांट्स को प्रोवाइड कर पाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म्स एंड पेरेंट मटीरियल्स। तो अलग अलग, सिंपल सी बात है, मैं कैसे दिखती हूँ, मेरे अंदर क्या जीन्स है, मेरे पेरेंट्स से आ रहा है, तो सॉइल के अंदर जो फीचर्स है वो उसके पेरेंट्स से आ रहा है, जो कि वो रॉक्स है जिससे वो फॉर्म हुआ है। It supports various ecosystems and is essential for agriculture, forestry, construction. सिंपल सी बात है यार, हर एक चीज के लिए सॉइल जरूरी है और हर एक चीज का बेस सॉइल है। पौधे, जानवर सब सॉइल की मदद से ही सरवाइव कर पाते हैं। अब सॉइल प्रोफाइलिंग की बात करते हैं। सॉइल प्रोफाइल से हमारा क्या मतलब है? सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल। यानी कि एक केक है, अब ऊपर से तो देख के पता नहीं चल रहा है अंदर कितने लेयर्स हैं, क्या फ्लेवर है, so on and so forth. So what you basically do is you cut the cake, you look at the layers, you observe it and you do a profiling. आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो। ऊपर ये choco chip का लेयर है, then we have mint and chocolate, then we have butterscotch and then we have strawberry. It's a very bad combination that ma'am is making, but yeah, these are the various layers. उसके लिए काटना पड़ा, हमने प्रोफाइलिंग की, हमने लेयर्स ऑब्जर्व किए, उसकी वजह से क्या टेस्ट आ रहा है, क्या टेक्सचर आ रहा है, ऑब्जर्व किया। तो वैसे ही जब आप सॉइल को लेयर बाय लेयर ऑब्जर्व करते हो, असेस करते हो, समझते हो, स्टडी करते हो, इसे सॉइल प्रोफाइलिंग कहते हैं। These layers are formed due to the cumulative effect of soil forming process. तो सॉइल बच्चे एकदम से नहीं बना है ना, हर कुछ दिन पे कुछ लेयर्स बने, हर कुछ सालों पे कुछ लेयर्स बने, हर कुछ 100 ईयर्स पे कुछ लेयर्स बने, कुछ में कुछ चीजें ऐड हुई, कुछ में कुछ चीजें ऐड हुई, कुछ चीजें कुछ पत्थरों से बनी, कुछ दूसरे पत्थरों से बनी। एक जब पहला नीचे वाला लेयर फॉर्म हो रहा था तब वेदर कंडीशंस डिफरेंट थे, अब जो ऊपर वाला लेयर फॉर्म हो रहा है वेदर कंडीशंस डिफरेंट है, दोनों में अलग मिनरल्स है। तो ऐसा कर करके अलग अलग तरह के लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं सॉइल के, डिपेंडिंग अपॉन इस फॉर्मेशन के टाइम पे क्या कंडीशंस रही थी। हर एक होराइजन का, हर एक लेयर का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपनी कलर, टेक्सचर कैसे फील होगी उसकी, उसका अपना स्ट्रक्चर होता है और अपनी कॉम्पोजिशन होती है, अपनी तरीके से वो बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे ऊपर हमारा टॉप सॉइल आता है। टॉप सॉइल इज बेसिकली हाईएस्ट न्यूट्रिएंट्स दैट इट कंटेन। सारे न्यूट्रिएंट्स ना आपको टॉप सॉइल में ही मौजूद ज्यादातर नजर आएंगे। मोस्ट ऑफ इट विल बी देयर एंड दैट इज व्हाट सपोर्ट्स द प्लांट्स द मोस्ट। सारे रूट्स वगैरह टॉप सॉइल में ही स्प्रेड होते हैं, उससे ही न्यूट्रिशन लेते हैं। और सारा ह्यूमस, द ऑर्गेनिक मटेरियल, ह्यूमस क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो कि फर्दर डिकम्पोज होकर के फर्टिलिटी ऐड करते हैं सॉइल में, ये सब हमें टॉप सॉइल में मिलता है, टॉप लेयर में मिलता है। उसके नीचे आता है सब सॉइल। सब सॉइल में थोड़े छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब मिलेगा। उसके नीचे और जाओगे तो रॉक्स मिलने लग जाएंगे, यानी कि वो रॉक्स जो टूटकर सॉइल बने थे, जो सबसे फाइनर मटेरियल बनता है वो ऊपर सेट हो जाता है, जो थोड़े बड़े रह जाते हैं वो थोड़े नीचे सेट हो जाते हैं। और सबसे नीचे आपको बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे। जब आप बहुत नीचे कट करोगे प्रोफाइल करते हुए सॉइल को, तो यू विल फाइंड दैट पेरेंट रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर, अब ऐसा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, साइज का कुछ कह नहीं सकते, बट बिगर रॉक्स जो नहीं वेदर ऑफ हुए, जो पूरे नहीं टूटे, वो नीचे जमा हो जाते हैं, और जो टूट जाते हैं वो ऊपर लेयर फॉर्म करते जाते हैं ऑन एंड ऑन। ठीक है, अब इसी के साथ हम कर लेते हैं फटाफट ये क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द सॉइल डाउन, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एक्चुअली, व्हाट इज इट नोन एज? Soil erosion, weathering, earthquake और landslide। ये जो प्रोसेस होता है ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? सॉइल इरोजन, वेदरिंग, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड।
Here is your hint. And this process is known as weathering. हमने पढ़ा अभी weather off होना, यानी कि टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में फिर बढ़ता जाना, weathering इसे कहते हैं. ठीक है. Now what are the factors which are responsible for the soil formation? Soil जब form हो रहा है, कैसा texture होगा, color होगा, nature क्या होगा, उसके लिए factors क्या क्या responsible है. सबसे पहले nature of parent rock. बच्चे आपको जब लोग देखते हैं तो कहते होंगे ना, अरे ये मम्मी जैसा है, पापा जैसा है, ये मम्मी जैसी है, पापा जैसी है, बिटिया ऐसी है, बेटा ऐसा है, आपकी हरकतें वैसी हैं. तो ये कहाँ से आ रहा है? आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. व्हेन यू वर बॉर्न फ्रॉम देम, वो फीचर्स आपके अंदर भी आते हैं. तो जो फीचर्स सॉइल के हैं वो नेचुरली उसके पेरेंट्स से आए होंगे. जो भी रॉक्स में मिनरल्स रहे होंगे, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे, वो ट्रांसफर होकर के भले उसका फॉर्मेशन चेंज हो गया, वो रॉक से पाउडर बन गया, लेकिन वो फीचर्स ट्रांसफर हो जाते हैं. तो पेरेंट रॉक कैसा था, किस रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन हुई है, वो नेचर ऑफ सॉइल को डिफाइन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. ठीक है. इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर. So the composition and the structure of the parent rock का structure क्या था, कैसा था, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि soil का formation कैसे होगा. जैसे कि igneous rock for example. igneous rock क्या होता है? igneous rock आपने पढ़ा हुआ है पहले. igneous rock हम उस rock को कहते हैं जो molten lava निकलता है बाहर earth से और solidify होकर के rock में change हो जाता है. ये जब break होता है तो ये भी soil form करता है. इससे जो सॉइल फॉर्म होगी नेचुरली आप देखोगे ज्यादातर ब्लैक होगी कलर में. क्यों? क्योंकि मोल्टन लावा काला अंदर से बाहर निकल के काला हो जाता है और फिर उससे जो सॉइल फॉर्म हुई उससे कलर का पे क्या असर आया? कलर हम देख रहे हैं कि ब्लैक हो गया. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट रॉक दैट इन्फ्लुएंसेस द नेचर और द फीचर्स ऑफ योर सॉइल दैट इज फॉर्म्ड. देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स. जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे जो डेड और डिकम्पोजिंग का काम होता है वो रुक जाता है. क्यों? कोई भी चीज डिकम्पोज कैसे होती है? माइक्रो बैक्टीरियस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर लग जाते हैं, उसे खा करके डिकम्पोज कर देते हैं. खाना है, प्लांट है, डेड एनिमल है, और वही डिकम्पोज होकर के सॉइल में मिल जाता है और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी है वहां वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थोड़े वार्मर मॉइस्ट एरियाज में सर्वाइव कर पाते हैं. बहुत गर्मी में दे गेट किल्ड, गर्मी से वो मर जाते हैं या ठंड से बहुत ज्यादा मर जाते हैं. बहुत गर्मी में वो मर गए तो डेड एंड डिकम्पोजिंग का काम रुक गया. वो रुक गया तो जो नेचुरल कंटेंट है ह्यूमस का उस तरीके के सॉइल पे अवेलेबल नहीं होगा. तो क्या समझ आया? टेम्परेचर से या क्लाइमेट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. बट सिमिलरली वेरियस तरीके से टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा. प्रेसिपिटेशन से, डेजर्ट प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, कितनी बारिश होती है, बारिश की बात हो रही है ना. अब जैसे जहां पे लो प्रेसिपिटेशन है, कम बारिश है, वहां क्या होगा? सॉइल ड्राई होगा बिल्कुल, जैसे कि डेजर्ट्स में होता है. ठीक है. वहीं पे आपका जहां बहुत प्रेसिपिटेशन है, हाई प्रेसिपिटेशन है, रिलेटिवली सॉइल जो है काफी फर्टाइल होगा, मॉइस्ट होगा. ठीक है. तो प्रेसिपिटेशन से भी सॉइल के टेक्सचर में, सॉइल में जनरल फर्क आ जाता है. और वेदरिंग इंटेंसिटी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मेशन. कितना फास्ट पत्थर वेदर ऑफ हो रहा है, कितनी फास्ट सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, किस किस तरीके से हो रही है, वो भी सॉइल के नेचर को बहुत अफेक्ट करती है. और वेदरिंग जो है वो क्लाइमेट से अफेक्टेड होता है. टोपोग्राफी. टोपोग्राफी का क्या मतलब है? formation, the form and formation of soil, the structure of soil. किस तरीके का लैंड फॉर्म क्या है, वो टोपोग्राफी होती है. ठीक है. कैसा फॉर्म है, फाउंडेशन है सॉइल का. तो स्लोप है कि नहीं, तो टोपोग्राफी से आपको ये समझ आएगा डेजर्ट है, माउंटेन है, ऊंचा है, नीचा है, टेढ़ा मेढ़ा है, प्लेन्स है, ये सब.
तो स्लोप है, स्लोप में क्या होगा, इरोजन ज्यादा होता है, क्योंकि स्लोप जब होता है, मान लो पहाड़ है, इफ देयर इज अ माउंटेन, माउंटेन पे पानी तेजी से गिरता है, वो बिल्कुल वॉश ऑफ, तेज स्पीड जब आती है बच्चे तो फोर्स आ जाता है, तो तेजी से जब पानी गिरेगा तो वो बहुत ज्यादा सॉइल को वॉश करता हुआ जाएगा हिल्स के स्लोप से, तो वहां पे इरोजन ज्यादा होगा। तो आप समझ रहे हो, स्लोप है तो इरोजन ज्यादा होगा, तो सॉइल की फॉर्मेशन अलग तरीके की होगी, वहां पे ड्रेनेज कैसा है, ये सारे फैक्टर्स एस्पेक्ट जो है अफेक्ट करते हैं सॉइल के डेवलपमेंट को, इरोजन और डिपोजिशन प्रोसेस को चेंज करके। अब जैसे यहाँ से पानी जब इरोड हो रहा है, करते हुए जा रहा है सॉइल, तो यहाँ पे सॉइल की फॉर्मेशन स्लो हो जाएगी, उसका नेचर डिफरेंट होगा, लेकिन वो ला करके यहाँ जब स्लोप खत्म हो जा रहा है पहाड़ का, प्लेन्स आ जाए, तो यहाँ पे जमा हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो सॉइल डिपॉजिट हो जा रहा है और नया सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब इसका नेचर जो है वो अलग होगा और डिपेंड करेगा, अब ये पहाड़ों में अलग, प्लेन्स में अलग, यानी कि टोपोग्राफी से भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही है। देन रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब जो प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स बेसिकली बच्चे कार्बन जिनमें ज्यादा होता है उनको कहते हैं। कार्बन आपका ह्यूमन बॉडीज में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काफी पाया जाता है, और यही कार्बन है जो डेड डिकम्पोज होकर के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रेशर से चेंज हो करके पेट्रोल वगैरह में भी चेंज हो जाती है, बट सॉइल में पहले होती है, सॉइल में पहले जाती है। तो नॉर्मल जो भी डिकम्पोजिंग प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करते हैं सॉइल में। जितनी ज्यादा एडिशन करेंगे उतनी बेटर फर्टिलिटी होगी सॉइल की, उतनी बेटर क्वालिटी होगी सॉइल की, और उसका स्ट्रक्चर उतना अच्छा होगा। तो रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी डिटरमाइन करेगा। जहां पे डेड और डिकम्पोजिशन कम होती है, डेड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स कम होते हैं, कम ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कम ह्यूमस होता है, कम नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की। ठीक है, टाइम, सॉइल फॉर्मेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, हमें समझ ही आ गया है, 1 मिलीमीटर के लिए अगर 100 साल लग रहे हैं तो बड़ा ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बड़े आराम आराम से हो रहा है। दैट अकर्स ओवर थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों लाखों साल लग जा रहे हैं भाई। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव। तो सॉइल की क्वालिटी उस पर भी डिपेंड करेगी, जितना थिक सॉइल होगा उतना अच्छा होगा, अब जितना जल्दी फॉर्म होगा उतना अच्छा होगा, अब किस स्पीड से हो रहा है, कितना वक्त लग रहा है, उस वक्त में क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन भी उस फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। सो टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल एंड हेंस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी कि सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मैंने आपको बताया, माइक्रो organisms रहते, bacteria, viruses, fungi, whatever. So activities of soil organisms such as earthworms and microorganisms influence soil structure and nutrient cycling. ठीक है, तो एक्टिविटीज जो है सॉइल ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि अर्थवॉर्म्स हो गए और भी बैक्टीरियाज हैं जो भी हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को और उसके न्यूट्रिशन के साइकिल को। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, बच्चे देखो लैंडस्लाइड वगैरह जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने आपको समझाया था कि प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेनेवर सॉइल इरोजन, सॉइल से रिलेटेड किसी भी चीज की बात आती है, दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ एंड व्हाई? प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, उनके रूट्स सॉइल में फैल जाते हैं और सॉइल को बाइंड कर लेते हैं, बांध लेते हैं, तो इरोड नहीं होने देते। जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो वो रूट्स सॉइल को छोड़ देते हैं, तो एक्सपोज रह जाता है सॉइल। उसकी वजह से क्या होता है, अगर विंड आया, वाटर आया तो उसके साथ बहकर उड़कर चला जाता है, और टॉप लेयर में ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, हम ये भी पढ़ रहे हैं। टॉप लेयर वॉश आउट हो जाएगा तो काफी ज्यादा न्यूट्रिशन चला जाएगा और क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है चेंज हो जाएगी या डिग्रेड हो जाएगी, अपग्रेड भी हो सकती है अगर डिपॉजिट हो जा रहा है सॉइल आकर के इरोजन की वजह से इन जनरल। बट डिफॉरेस्टेशन इस प्रॉब्लम को लीड करती है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटना, फॉरेस्ट का हटना। तो हमें कोशिश करना है कि फॉरेस्ट ज्यादा से ज्यादा बने रहे, और बच्चे जब डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल इरोजन होगी, तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो ऊपर है वो चला जाएगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन जनरल डेड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स कम मिलेंगे, तो सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल अपने आप घटेगा, फर्टिलिटी घट जाएगी। ओवरग्रेजिंग, ये भी मैंने आपको लैंड में समझाया था कि ओवरग्रेजिंग कैसे चैलेंज है और क्यों प्रॉब्लम है। ओवरग्रेजिंग का क्या मतलब है? ग्रेजिंग क्या होता है? जो घास प्लांट्स ग्रो करते हैं इन जनरल, उसको जो जानवर आकर के ग्रेज करते हैं, चरते हैं, खाते हैं, उसको ग्रेजिंग कहते हैं। अब ये जब बहुत ज्यादा एक्सेसिवली होने लगे, इसको ओवरग्रेजिंग कहते हैं। आप कहोगे मैम जानवर तो खाते हैं पौधे, वो एक्सेसिव का क्या मतलब है? बच्चे देखो, ऐसा होता है कि जो लोग प्लांट्स जानवरों को ले जाते हैं ग्रेजिंग कराने के लिए,
वो स्पेसिफिक स्पॉट्स पे ले जाते हैं। अब बार बार रोज रोज एनिमल्स वही उसी जगह जा करके उन्हीं पौधों को खाते रहेंगे, उन्हीं ग्रासेस को खाते रहेंगे, तो आखिर सॉइल कितना सपोर्ट करेगा उस प्लांट को, उस ग्रास को वापस ग्रो करने में, वापस डेवलप करने में? आप समझ रहे हो? क्योंकि प्लांट्स का खाना क्या है? प्लांट्स का खाना न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल है, सॉइल प्रोवाइड कर रहा है ये सारा न्यूट्रिशन। अब जब वो बार बार खत्म हो जाता है, प्लांट खत्म हो जाता है, उसको खा लिया जाता है, या उसे ग्रो करना है, उसे मेंटेन करना है वो सर्टेन अमाउंट, वो सर्टेन लिमिटेशन, तो उसका खाना तो न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है सब कुछ। तो वो जितना ज्यादा खुद खत्म हो जाएगा प्लांट्स, उतना ज्यादा वो न्यूट्रिशन खींचेगा सॉइल से, ताकि वो डेवलप कर सके। समझ रहे हो आप? अब ये जानवर बार बार आ रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, प्लांट्स न्यूट्रिशन को खा रहा है, और सॉइल में न्यूट्रिशन धीरे 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 ओवर ग्रेजिंग जब हो रही है, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो रही है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है, एक ही जगह पे हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है, तो धीरे 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 उस जगह से सॉइल की क्वालिटी घटने लग जाएगी, उसका न्यूट्रिशन जो है वो खत्म होने लग जाएगा। तो ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस वजह से क्रिएट करती है, एक्सेसिव ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक, विच लीड्स टू सॉइल compaction, erosion and loss of वेजिटेशन कवर इज वेल। तो देखो, वेजिटेशन कवर, एक ये भी तो चीज हो रही है कि वेजिटेशन कवर ही खत्म हो जा रहा है। प्लांट्स जब आपके ये एनिमल्स इन ग्रासेस को खा जा रहे हैं, तो वो रूट्स जो बाइंड किया हुआ था वो भी खत्म हो रहा है, तो उससे भी इरोजन होगा, राइट। और कंपैक्शन का मतलब क्या है? क्रशिंग करना, किसी चीज को दबा देना, सप्रेस कर देना, कंप्रेस कर देना। तो सॉइल कंपैक्शन भी हो रहा है यहाँ पे, सॉइल दब रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, एनिमल्स कॉन्स्टेंटली वहां पे वॉक कर रहे हैं, तो इट्स नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली, इट्स अफेक्टिंग द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। केमिकल इनपुट्स, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कहाँ से हो रहा है ये ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स? कौन ला रहा है इतना फर्टिलाइजर्स? सिंपल सी बात है, फार्मर्स ला रहे हैं। इट इज द फार्मर्स हु आर डूइंग दिस। बच्चे, आज के डेट में ना प्रोडक्शन हाई रखने के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग, देखो सॉइल नेचुरली फर्टाइल है, लेकिन उसके पास जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हो सकता है, पर हम क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग के लिए, बेटर प्रॉफिट्स के लिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को मीट करने के लिए बहुत बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ये एक सॉइल से जहां पे आप 100 केजी ही राइस बना सकते थे, अब आपके पास उतनी ही जमीन है और बहुत सारे लोग हैं और आपको पैसे भी ज्यादा बनाने हैं और ज्यादा लोगों का पेट भी भरना है, तो डिमांड भी ज्यादा है। अब आप उस जहां पे 100 केजी ग्रो कर सकता था, आप 150 केजी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, 200 केजी करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रो प्रोड्यूस राइस। सॉइल के पास इतना न्यूट्रिशन नहीं है, अगर आप प्लांट कर भी देते हो तो वो अच्छी क्वालिटी का फसल निकाल कर नहीं देगा। तो अब हम क्या करते हैं? हमें लगता है अरे सॉइल के पास इनफ नहीं है, हम ऊपर से केमिकल्स के फॉर्म में सॉइल में ये डाल देते हैं, इससे राइस के मेरे प्लांट्स बड़े अच्छे हो जाएंगे, उनको सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा और बढ़िया प्रोडक्शन आ जाएगी, मेरे 100 केजी का 200 केजी आराम से बन जाएगा। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द फार्मर्स एंड द पीपल डू, एंड दैट इज द प्रॉब्लम एंड द चैलेंज। सो हम केमिकल इनपुट्स बहुत डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड व्हाट नॉट। अब ये उस वक्त इमीडिएट रन में इट हेल्प्स द क्रॉप्स, बट ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम जो क्वालिटी होती है सॉइल की वो धीरे 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 बुरी होने लग जाती है। और साथ ही साथ इन केमिकल्स के जाने की वजह से, अब देखो ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्यों डल रहे हैं? इंसेक्ट्स और पेस्ट्स को मारने के लिए, ताकि कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स में ना लगे और उनकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो खराब ना हो। अच्छा इंटेंट है, प्लांट खराब हो जाएगा तो उपज नहीं होगी, हार्वेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप उनको मार रहे हो, हमें ये भी याद रखना है कि कुछ इंसेक्ट्स और पेस्ट्स अच्छे होते हैं, वो सॉइल में जब एग्जिस्ट करते हैं तो वो डेड डिकम्पोजिशन वाला काम करते हैं, सॉइल में फर्टिलिटी ऐड करते हैं, ये सारी चीजों को फिक्स करते हैं। जब आप ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालते हो तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाते हैं, उनके मरने से सॉइल की फर्टिलिटी जो नेचुरली फॉर्म हो रही थी वो भी अफेक्ट हो जाती है, वो भी डिस्ट्रप्ट हो जाती है, विच अगेन विल हैम्पर इट। प्लस आपने इतना केमिकल डाल दिया तो उससे भी सॉइल खराब हो गया, केमिकल्स तो आर्टिफिशियल ऐसे ही खराब होते हैं, ठीक है। और वो प्लस दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। बच्चे, खेतों में जो पानी जाता है वो ये सारे केमिकल्स लेकर के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता है, जो हम पीने के लिए, खाने पीने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, या वॉश ऑफ होकर के नदियों में मिल जाता है, और ये है केमिकल्स। केमिकल्स अच्छे हैं नहीं, वो क्या करेंगे? पानी को भी पल्यूट कर देंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन?
सॉइल फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? I'll quickly show you the hint. रेनफॉल अफेक्ट करता है। रॉक देखो, पेरेंट रॉक जो है उसका कलर तो आएगा ना सॉइल में, ह्यूमस भी है। स्लोप ऑफ द लैंड, नाउ दैट्स दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे एलिमिनेट करने में आपको कंफ्यूजन, सॉरी, एलिमिनेट करने में कंफ्यूजन लगेगी, ठीक है। बच्चे देखो, कलर ऑफ रॉक से नेचर ऑफ सॉइल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो भी पेरेंट रॉक का होता है वो आ जाता है, बट कलर नेचर से आता है। कलर ऑफ रॉक से सॉइल फॉर्मेशन के पीछे का फैक्टर एक्चुअली अफेक्ट नहीं होता है। इट जस्ट एड्स ऑन टू द फीचर ऑफ द सॉइल। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल? डिग्रेडेशन से क्या मतलब है? सॉइल की क्वालिटी जो खराब कर देता है, डिग्रेड कर देता है। अपग्रेड मतलब ग्रेड बढ़ाना, डिग्रेड मतलब ग्रेड घटाना, राइट? तो सबसे पहले वाटर इरोजन, सॉइल इरोजन इन जनरल सॉइल की क्वालिटी खराब कर देता है। आपका टॉप लेयर वॉश ऑफ हो रहा है, लेयर पे लेयर हटता जा रहा है, तो सॉइल की क्वालिटी को हैम्पर करेगा। वाटर इरोजन यानी कि वाटर की वजह से इरोजन होना। देखो बेटा, नेचुरल सॉइल इरोजन ना एक्चुअली नेचुरल एजेंट से ज्यादा होता है। वाटर, रेनफॉल, विंड, पर नेचर का अपना तरीका था इसको बैलेंस करने का। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो बैलेंस बिगड़ गया, इसलिए हमें अब एडिशनल स्टेप्स लेने की जरूरत है कंजर्व करने के लिए सॉइल। तो वाटर इरोजन क्या हो गया? जब रेनफॉल बहुत तेज, आपने कभी ऐसा किया है, कभी पॉट में पानी डाला है, गमले में, फ्लावर पॉट में, तो जब आप फ्लावर पॉट में पानी डालोगे और बहुत ऊपर से डालोगे तो आप देखोगे तेज बूंदे जब गिर रही हैं, अपने आप सॉइल ना ऐसे स्प्लैश आउट कर रहा है, छींटे उड़ रहे हैं उसके चारों तरफ, और वो गड्ढे हो जा रहे हैं, यानी कि मिट्टी मिट जा रही है, मिट नहीं रही है, हट जा रही है, इट्स गेटिंग रिमूव्ड। वो भी एक तरीके का सॉइल इरोजन है, क्योंकि वो छोटे से पॉट में है तो हमें समझ नहीं आता है। सो वो क्या कर रहा है? वो भी टॉप लेयर ऑफ सॉइल हटा रहा है। व्हेन यू आर वाटरिंग योर प्लांट्स जोर से, तो बारिश भी तो सेम चीज कॉज कर रही है, या कहीं से पानी बहता हुआ आ रहा है तो वो भी ऊपर से एक लेयर वॉश ऑफ करके ले जा रहा है। तो ये भी सॉइल के फर्टिलिटी को, उसकी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट को हैम्पर करता है और उसकी फर्टिलिटी को घटाता है। लैंडस्लाइड्स हमने पढ़ा, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, अगेन एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो सॉइल को डिस्प्लेस कर रही हैं। जब सॉइल डिस्प्लेस हो जा रहा है तो उस पूरी, भाई टॉप लेयर जब हट रहा था तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, पूरा का पूरा सॉइल डिस्प्लेस होगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी, इरोजन होएगा, सेडिमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम होगी, अलग जगह पे जाकर के सॉइल जमा होता जाएगा, ठीक से फॉर्मेशन नहीं होगी, इम्पैक्ट करेगा लैंड की प्रोडक्टिविटी को, स्टेबिलिटी को। इससे क्या होता है? सॉइल की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। अब इन फैक्टर्स से, और ह्यूमन एक्टिविटीज भी, ये अभी हमने बड़े नेचुरल चीजों की बात करके बड़े आराम से टाल दिया है, बट ह्यूमंस क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, केमिकल्स मिला रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा भी पहले, है ना, माइनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजों से भी हम जमीन को हैम्पर करते हैं, जमीन की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो अब जब हम खराब कर रहे हैं और हमारे इंटरवेंशन से ये ज्यादा बुरा हो रहा है, तो हमें ही कंजर्व भी करना होगा। तो कंजर्वेशन में सबसे पहले हमारा मेथड आता है मल्चिंग, ठीक है? ये याद है, मल्चिंग हमने देखा था थोड़ा सा उधर भी। मल्चिंग का मतलब ये है बच्चे कि खाली जमीन है उसको खाली नहीं छोड़ेंगे कि पानी, हवा कुछ भी आया और उड़ाकर ले गया।
Covering bare ground with organic matter like straw helps retain soil moisture and reduce erosion. Straws जो होते हैं, भूसा जिसे कहते हैं, सूखे हुए प्लांट्स जो हार्वेस्ट होता है, वो जब सीड्स निकल जाते हैं, काम की चीज निकल जाती है, तो जो लेफ्ट ओवर प्लांट्स वगैरह होता है, वो स्ट्रॉस हम जानवरों को खिलाते हैं, फॉडर की तरह भी यूज किया जाता है। उन स्ट्रॉस को अगर आप खाली जमीन पे डाल दो तो पहली चीज, हवा चलती है तो स्ट्रॉस फ्लो ब्लो करेंगे, नीचे की सॉइल प्रोटेक्टेड रहती है, वो उड़ करके इरोड नहीं हो जाएगी। दूसरा, सीधा डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ड्राई नहीं होगा, फर्टिलिटी बेटर होगी, टेम्परेचर बेटर मेंटेन रहेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल में एडिशन होगी, ठीक है। कॉन्टूर बैरियरिंग यानी कि शैडो लाइंस बनाना, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स। यानी कि समझो कि एक जमीन है, फ्लैट जमीन, उस पर कुछ नहीं किया, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, आप कई जगह देखोगे पत्थरों से बाउंड्रीज बनाई रहती हैं, शैडो लाइंस बनाई रहती हैं, तो वो क्या हो रहा है, जगह जगह पे जमीन में फ्लो ऑफ वाटर को या फ्लो ऑफ विंड को ब्रेक करेगा, तो वो क्या होगा, इसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होगा। तो ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो ये जो बैरियर्स बनाए उसके सामने ट्रेंच बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं कि पानी आए और यहाँ कलेक्ट भी हो जाए, तो जो सॉइल फिर भी इरोड करके लाया होगा वो वहां जमा हो जाएगा। तो कॉन्टोर लाइंस इस तरीके से शैडो लाइंस बन के प्रोटेक्ट करते हैं। रॉक डैम्स बनाना, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। कहीं बहुत तेजी से आ रहा है पानी, तो हमने बीच बीच में रॉक्स लगा दिए, ऐसे लाइंस ऑफ रॉक्स लगा दिए कि वो थोड़े से पानी के फ्लो को ब्रेक करेगा। क्योंकि बच्चे होता क्या है, स्पीड से फोर्स आ जाती है। अगर आप पानी को नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे फ्लो कराओगे, ऐसे डाल के देखोगे, तो देखोगे बड़ा धीरे धीरे बह रहा है, वहां पे कुछ है तो वो अपने साथ बहा नहीं पाएगा, अपने साथ इट विल नॉट बी एबल टू मेक इट फ्लो अलॉन्ग विथ इट। बट अगर स्लोप पे अगर आप डालोगे, इट गेट्स मोर power, and if there is something, it will make it move along with itself. Same thing happens with soil. Slope पे ना उसके पास, water के पास ज्यादा एनर्जी पावर आ जाती है, तो ज्यादा मिट्टी को ले जाता है, प्लेन्स पे कम ले जाता है। वहां पे अगर आप उसके फ्लो को तोड़ दो, आप उसके स्पीड को तोड़ दो, तो उसकी एनर्जी जो फोर्स है उसमें वो खत्म हो जाती है, वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो कम इरोजन करेगा। ऑल्सो प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल इरोजन। गली का मतलब क्या हो गया, गली, लेन्स, घर में, घर के पास, कॉलोनी के पास गलियां बनी होती है, लेन्स बने होते हैं जिनमें हमारे घर होते हैं। तो जब बहुत तेज पानी बह रहा होता है स्लोप पे, तो आप देखोगे कि वो पतले स्ट्रीम में बहता है, वो इकट्ठा होकर एक पतली नैरो शार्प स्पीड से बहता जाता है। वहीं अगर फ्लैट सरफेस पे बैठता है तो वो फैल जाता है, शैलो होता है और स्प्रेड हो जाता है। तो इसलिए स्प्रेड हो जाता है, तो उसमें फोर्स नहीं होता। लेकिन जब स्लोप में गिर रहा होता है तो नैरो तरीके से स्पीड से फ्लो कर रहा होता है, और स्पीड से उसके पास बहुत एनर्जी होती है सॉइल को कट करते जाने की। तो वो गली जैसा, लेन जैसा फॉर्म करते जाता है, सॉइल को काटता हुआ जाता है, उसमें इतना फोर्स आ जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। तो वो गली इरोजन कहलाता है, गली जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम पानी के स्पीड को तोड़ देते हैं। टेरेस फार्मिंग सिंपल है, स्टेप फार्मिंग, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ये क्या किया, देखो यहाँ से अगर सीधा प्लेन ऐसा फार्मिंग किया रहता तो स्लोप से पानी आराम से बह सकता था, हमने यहाँ पे स्टेप्स बना दिए। अब ये स्टेप से तेज से पानी गिरा, जो भी आपका आया मिट्टी वो यहाँ जमा हो गई, फिर यहाँ से पानी गिरा, जो मिट्टी रोड हो रहा था यहाँ जमा हो गई, वो पूरा सारी मिट्टी यहाँ से यहाँ तक बहकर यहाँ आकर इकट्ठी नहीं होगी, जगह 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 जमा होती जाएगी। तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स या टेरेसेस बना दी जाती हैं स्टीप स्लोप्स को काट करके, ताकि क्रॉप्स उनपे ग्रो भी की जा सके, प्लस जो रन ऑफ होता है पानी का और जो सॉइल इरोजन होता है उसे हम अवॉइड कर सके। सो हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, the last question of the session, and here we go. Which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? जो बिल्कुल steep slopes होते हैं वहां पे soil erosion को रोकने का, चेक करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? Let's look at the hint. Shelter belt, mulching, terrace cultivation. So बच्चे स्लोप है,
तो स्लोप को ब्रेक करेंगे, हम स्टेप्स बनाएंगे, स्लोप नहीं रहेगा, स्पीड नहीं रहेगा, इरोजन नहीं होगा, सिंपल है ना। चलो, सो मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, हाउ डू वी कंजर्व सॉइल, काफी सिंपल है। हमने देखा कि सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन करना है, टेरेस फार्मिंग करनी है ना, ये सब हमने पढ़ लिया। इंटरक्रॉपिंग यानी कि अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज में लगाओ। कहीं पे अगर छोटा लेंथ का क्रॉप लगाया है तो उसके बगल में, इसको स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं, उसके बगल में लंबी ग्रासेस लगा दो। उससे क्या होगा, अलग अलग टाइम पे दोनों काम करेंगे रेन वॉश से सॉइल को बचाने की, प्लस विंड अगर तेज आया, छोटे वाले प्लांट्स नहीं बचा पा रहे सॉइल को, तो बड़े वाले प्लांट्स विंड की स्पीड को ब्रेक करेंगे तो वो नहीं उड़ा कर ले जाएगा सॉइल को, इट विल नॉट ब्लो ऑफ द सॉइल। कॉन्टोर प्लॉइंग हम पढ़ ही चुके हैं, प्लाइंग पैरेलल्स टू कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल, हिल्स के साइड साइड में पैरेलल तरीके से प्लाइंग करना ताकि एक नेचुरल बैरियर बन जाए, ताकि वाटर वगैरह जो फ्लो डाउन कर रहा है वो रुक जाए। शेल्टर बेल्ट्स, कोस्टल एरियाज या ड्राई रीजन्स में रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल। शेल्टर बेल्ट, ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये शेल्टर बेल्ट्स है। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसा रहता तो ये बीच बीच की जमीन में चीज विंड उड़ा कर ले जाती। अब यहाँ से यहाँ हमने शेल्टर बेल्ट लगाते हैं, देखो एक तो ये प्रोटेक्ट करता है, शेल्टर देता है, ट्रीज का होना अच्छा होता है, प्लस ये विंड की स्पीड को ब्रेक करता है, ज्यादा सॉइल होल्ड करता है तो पानी से भी वॉश ऑफ नहीं हो पाता है। दिस इज शेल्टर बेल्टिंग। तो कोस्टल एरियाज में, ड्राई रीजन्स में जहां ज्यादा पानी वगैरह होता है, वहां पे ये बहुत यूज किया जाता है। एंड हियर वी गो, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट आर कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। क्या इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं बच्चों? इसे हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते। इंटरक्रॉपिंग तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स लगाना ताकि वो अलग अलग पर्पसेस सर्व कर सके, उससे कहते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन व्हिच इज सॉइल एज अ रिसोर्स। लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव डन। हमने पढ़ा कि सॉइल एक वाइटल नेचुरल रिसोर्स है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर हर एक चीज से बना होता है, मिनरल से बना होता है और वेदर्ड रॉक से बना होता है थ्रू द वेदरिंग प्रोसेस। सॉइल प्रोफाइल डेलिनेट्स डिस्टिंक्ट लेयर्स। सॉइल प्रोफाइल का मतलब है आप अलग अलग लेयर को असेस करते हो, स्टडी करते हो, और वो हमें बताता है कि पेरेंट रॉक का मटेरियल क्या है, कैसे क्लाइमेट में बना, क्या टोपोग्राफी थी, ऑर्गेनिक मटेरियल है कि नहीं, कितना वक्त लगा, बेसिकली पूरी डिटेल देता है, प्रोफाइलिंग होती है सॉइल की। ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जो सॉइल डिग्रेडेशन में बहुत एक्टिवली काम करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, केमिकल इनपुट्स, वाटर इरोजन, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, and we need to conserve the soil. So what are the certain methods that we can use? Mulching है ना, बड़े ग्राउंड पे छोटे छोटे क्रॉप्स लगा देना, कॉन्टर बैरियर क्रिएट करना, रॉक डैम्स क्रिएट करना, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टर प्लाउइंग एंड शेल्टर बेल्ट्स, ये सब मिटिगेट करते हैं इरोजन को, काफी हद तक कंट्रोल करते हैं, रिटेन करते हैं मॉइस्चर, इनहैंस करते हैं सॉइल फर्टिलिटी, एंड ऑफ कोर्स वेरी क्रूशियल फॉर अ प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट फॉर एंड एग्रीकल्चर, एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट द सॉइल एंड लैंड इफ वी हैव टू सर्वाइव, as simple as that. So with that, water is also a very valuable resource. We know that, right? पानी के बिना आप एक दिन पानी नहीं पियो, डिहाइड्रेट होकर के अगले दिन हम हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे गर्मियों में। तो फ्रेश वाटर ही है जो हम पीते हैं, है ना। सॉल्ट वाटर नहीं पी सकते, ओशन और सी से जो मिलता है, जो कि पूरे अर्थ पे भरा हुआ है, बट फ्रेश वाटर सिर्फ 1% है, वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। अभी जैसे बैंगलोर में वाटर क्राइसिस, महाराष्ट्र में वाटर क्राइसिस हैवी लेवल पे चल रहा है, समझदार ही ऑल्सो। So what would happen if all the water suddenly vanished from the earth's surface? What importance does it play? How can we make sure that that doesn't happen? All of this we'll discover in the next session. So make sure that you stay tuned and do not forget to register for all the upcoming classes of for your grade for on Imbibe's platform under the Imbibe live classes. साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे लर्निंग वीडियोस है, ब्यूटिफुली क्रिएटेड वीडियोस। ट्रस्ट मी, यू लव टू वॉच दोज वीडियोस। ये ऑडियो विजुअल से लर्न करना, जब आपको ग्राफिकली सब कुछ दिखा दिया जाता है ना, वो जो दिमाग में इंप्रेशन छोड़ता है वो कभी नहीं छोड़ता है। ये वीडियोस की भी मदद लो, बट डू वॉच दोज अदर वीडियोस, स्पेशली फॉर द टॉपिक्स दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट। यू विल फाइंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन Imbibe's platform. You can even get your doubts resolved. Imbibe Lens का मैजिक हमें पता ही है, हमने देख ही लिया है। Kubos हमने देख लिया 3D से इंटरैक्ट करके, how fun it is. Now we need to start practicing a lot of writing and take a lot of tests, because that is what exactly helps us understand how well we have understood the chapter and the concept and how well we are able to implement and apply our knowledge.
बुक में कितने ही सवाल होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से practice karo, and you'll find a plethora of questions on them by platform. So make sure to check that out and do not forget to create your achieve journey. Most importantly बच्चों, अब ये सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है भाई फ्री में, तो जितने दिन हैं मजे से एंजॉय कर लो. प्लस इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द ग्रेट फीचर्स यू विल नॉट मिस आउट ऑन एंड यू वुडंट वांट टू मिस आउट ऑन, एंड देन यू विल रेडिली गो अहेड एंड टेक द सब्सक्रिप्शन, राइट. प्लस आपके एक्सपेरिमेंट्स का दौर अब शुरू हो गया है, तो अब आपको लैब नहीं भी ले जाया जा रहा है. आज मैं पूछ भी रही थी बच्चों से, बच्चों ने बोला नहीं मैम हमें लैब नहीं ले जाते अभी भी. 9th-10th के बच्चों को 10th प्राइमरीली और 11th-12th के बच्चों को ज़्यादा ले जाते हैं, तो कोई बात नहीं यार, उसकी वजह से प्रैक्टिकल्स करना थोड़ी छोड़ देंगे. प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है टू परफॉर्म इट प्रैक्टिकली लाइक इन रियलिटी. तो आपके लिए वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस है, वीएलई की मदद से आराम से मुझे से सारे प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस करो, सीनियर क्लास के भी कर लो, जो मन आए और पूरा एक्सपीरियंस ले लो. इट्स जस्ट लाइक अ गेम बट you'll also be learning, right? How cool is that? And Imbibe Blends की मदद से और Imbibe app की मदद से you can keep enriching your knowledge. Do not forget to resolve your doubts if you have any. ये आपका यहाँ पे, ये आप जैसे देख सकते हो, ये MB यहाँ पे ऐप या वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ उस पर क्लिक करते इट विल डायरेक्ट यू टू द चैट. यहाँ से आप अपने सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सारे क्वेरीज आराम से रिजॉल्व करवा सकते हो, ठीक है. So with that, we are done with the session. Thank you so much for being here. Do not forget to hit the like button and do share the video with your friends. Do tell me in the comment section how did you like the session. If you need something else from me, what other requirements are that I can help you out with. And guys, make sure to subscribe to the channel. So I'll see you guys soon. Till the next time, hasta la vista, bye bye, ciao. I'm gonna sign off. Take good care of yourselves and stay safe. And stay tuned. Do not forget to connect soon. Do not miss out the next session and keep imbibing.